کہاں ہے منزلِ راہِ تمنا، ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب ہم پہ بھی گزرے گی، یہ فردا ہم بھی دیکھیں گے۔ ٹھہر اے دل جمالِ روئے زیبا، ہم بھی دیکھیں گے۔ ذرا سیکل تو ہو لے تشنگی بادِ گساروں کی، دبا رکھیں گے کب تک جوشِ صہبا، ہم بھی دیکھیں گے۔ اٹھا رکھیں گے کب تک جام و مینا، ہم بھی دیکھیں گے۔ صلا آ تو چکے محفل میں اس کوئے ملامت سے، کسے روکے گا شورِ پندِ بے جا، ہم بھی دیکھیں گے۔ کسے ہے جا کے لوٹ آنے کا یارا، ہم بھی دیکھیں گے۔ چلے ہیں جان و ایماں آزمانے آج دل والے، وہ لائیں لشکرِ اغیار و اعدا، ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ آئیں تو سرِ مقتل تماشا، ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ شب کی آخری ساعت گراں کیسی بھی ہو ہمدم، جو اس ساعت میں پنہاں ہے اجالا، ہم بھی دیکھیں گے۔ جو فرقِ صبح پر چمکے گا تارا، ہم بھی دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ ہی سے کہو، کسی اور سے نہ کہو، کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو تو یہ نصیحت کہلائے گی اور اس کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر کسی اور سے کہو گے تو یہ غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے کہ جو جماعت نہم اور دہم یعنی میٹرک کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج پارٹ 2 کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی 10ویں کلاس کی اردو کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے مکمل سلیبس کے بارے میں، پیٹرن کے بارے میں، اور پورا طریقہ کار اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ کیونکہ جب بچے 9th کلاس سے 10th کلاس میں آتے ہیں تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے ہمارا رزلٹ آئے گا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سنجیدہ لیں گے اس چیز کو۔ لیکن جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 10th کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار اس کی دہرائی کر سکیں۔ ہوتا تو 9th کلاس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں، لیکن 10th کلاس کے پاس بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے، اور بچوں کو اس کے سلیبس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا اور پیٹرن کا بھی اتنا خاص ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اتنے کم نمبر آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ اردو لازمی برائے جماعت دہم جو کتاب ہے وہ میرے سامنے ہے اور آپ لوگ سکرین پہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا فرسٹ والا پیج نکالیں گے۔ سب سے پہلے ہے حمد اور اس کے بعد نعت۔ حمد حفیظ جلندری نے لکھی ہے اور نعت احسان دانش نے لکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حصہ نثر آئے گا۔ حصہ نثر میں سب سے پہلے ہے مرزا محمد سعید کا خاکہ ہے، یہ شاہد احمد دہلوی نے اس کے مصنف ہیں۔ مصنفین کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان ہے، یہ تحریک بھی ہے اور مضمون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے لکھا ہے۔ پھر پرستان کی شہزادی، یہ ایک داستان ہے جو اشرف صبوحی نے لکھی ہے۔ اور اس کے بعد اردو ادب میں عید الفطر، یہ بھی ایک مضمون ہے اور اس کو ڈاکٹر وحید قریشی نے لکھا ہے۔ اس میں 7واں جو ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ خود نوشت ایک قسم کی بنتی ہے جس کو سجاد حیدر یلدرم نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ملمہ، یہ افسانہ ہے اور حاجرہ مسرور مصنفہ نے لکھا ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد چغل خور، یہ لوک کہانی ہے اور شفیع عقیل نے اس کے مصنف ہیں۔ پھر 10ویں پہ ہے نام دیو مالی، اور نام دیو مالی جو ہیں یہ بھی ایک خاکہ کشی کی گئی ہے مولوی عبدالحق بابائے قوم نے۔ پھر علی بخش
खुद नविश्त है, ये कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है। फिर इस्तंबोल है, ये सफ़रनामा है, ये हकीम मोहम्मद सईद ने लिखा है इसको। फिर हतूत गालिब, ये हतूत हैं और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने ही इसको तहरीर किया है। फिर हतूत रशीद अहमद सदीकी हैं और ये हतूत है और रशीद अहमद सदीकी ने इसको तहलीक किया है। अब हिस्सा नज़म पे दोबारा हम आते हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, ये मीर अनीस ने इसको लिखा है। फिर फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये अलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म है। फिर किसान, जोश मलीह आबादी की नज़म है। जीवे जीवे पाकिस्तान, ये जमीलुद्दीन आली की नज़म है। ऊँट की शादी, ये दिलावर फ़गार की नज़म है। और माल गोदाम रोड, ये मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने इसको लिखा है। यानी जो इसमें कहानियाँ हैं, जो नसरी कहानियाँ हैं, वो 12 हैं और जो नज़में हैं इसमें वो हम्मद और नात को मिलाकर वो 8 हैं। गज़लें इसमें 4 हैं। ठीक है। हिस्सा गज़ल में पहले हज़रत मोहानी की गज़ल है, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है। फिर जिगर मुराद आबादी की मशहूर गज़ल है, आदमी आदमी से मिलता है। फिर फ़िराक गोरखपुरी की ये गज़ल है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। और फिर अदा जाफरी शायरा हैं, उनका ये है कि ये फ़हर तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। ये आप लोगों का मुकम्मल उर्दू अलिफ का सिलेबस है। उर्दू बे में आप लोगों के मज़ामीन हैं और आप लोगों के पैराग्राफ आते हैं, जिसमें आप लोगों ने पैराग्राफ में से सवालात के जवाबात देने होते हैं और अपनी वर्डिंग करनी होती है। 10th क्लास में जो ग्रामर का सीन है वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने जितनी भी ग्रामर शुरू से पढ़ी हुई है, जिसमें कलमा की अक़साम है, तशबीक और ये इस्तारा है, मिजाज मुरसल है, इसम नकरा की अक़साम है, इसम मारफा की अक़साम है, इसमें से आप लोगों की मारूज़ी आती है। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने एक पेपर है जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी उसको देख रहे होंगे। ये एक किस्म का टेस्ट है और बिल्कुल बोर्ड के ऐन मुताबिक है, बोर्ड के पेपर के पैटर्न के ऐन मुताबिक है। सबसे पहले आता है सवाल के आप लोगों ने मारूज़ी करनी होती है 15 नंबर की, और उसमें से आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर की मारूज़ी में से भी आप लोगों के आध आध होता है, यानी आध आप लोगों का नज़मों गज़लों और जो नसरी कहानियाँ उसमें से आता है, और आधा आप लोगों का जो ग्रामर है उसमें से आता है, जैसे इराब लगाने होते हैं और इसम मारफा नकरा की किस्में वगैरह, ये सारा कुछ इसमें से आप लोगों ने ये लगाना होता है और इसके जो 15 नंबर यहाँ से पूरे करने होते हैं। उसके बाद हिस्सा अव्वल शुरू हो जाता है आप लोगों का इंशाइया का। इसमें नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह करनी होती है और ये इसके 10 नंबर यहाँ से होते हैं और 4 शेर होते हैं आप लोगों के हिस्सा नज़म में, और उसमें से आप लोगों ने 3 करने होते हैं लाजमी, और 3 शेर होते हैं आप लोगों के हिस्सा गज़ल में से, और 2 आप लोगों ने यहाँ से लाजमी करने होते हैं। अब तरीक़ाकार इसका हल करने का ये है कि आप लोगों ने शायर का नाम और नज़म का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखना है, वरना यहाँ से नंबर आप लोगों से के काट लिए जाते हैं, जितनी अच्छी तशरीह आप लोग लिखें, लेकिन ये 2 चीज़ें भी ज़रूर ऊपर आप लोग मेंशन करें, बल्कि लिखें इसको। इसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है हिस्सा 2। नसर पारों की तशरीह करनी होती है आप लोगों ने, अल्फाज मायनी और मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है और सबक का नाम भी लिखना होता है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ होते हैं और दोनों ही आप लोगों ने लाजमी करने होते हैं, और 5-5 यहाँ पर इसके नंबर होते हैं, और 10 यहाँ पर भी टोटल जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। अब इसका तरीकाकार ये है हल करने का कि आप लोग सबसे पहले ऊपर हवाला मतन लिखेंगे, और मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने ये खुलासा लिखने का पूरा तरीका भी बताया हुआ है और तशरीह करने का भी। तो इस तरह है कि जो हद कशीद अल्फाज हैं उनको भी उनके भी मायने लिखने होते हैं, और मुसन्निफ़ का नाम और उन्वान लिखना होता है या सबक का नाम लिखना होता है। कहानी, मज़मून और अफ़साना, ड्रामा, इस तरह हम ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, और आप लोगों ने उसकी तशरीह जो है वो करनी होती है। तशरीह जो है आप लोगों ने सेम वर्डिंग उठाकर नहीं लिख देनी, बल्कि आप लोगों ने इसको मुकम्मल तफसील के साथ लिखना होता है।
उसके बाद सवाल नंबर 4 आ जाता है हमारे पास, सवालात के जवाबात दें। यहाँ पर बच्चों को चॉइस दी जाती है और यहाँ पर 5 सवाल हम लोगों ने हल करने होते हैं और टोटल यहाँ पर 8 सवाल होते हैं। उनमें से हमने 5 सवाल करने होते हैं और हर सवाल के 2-2 नंबर होते हैं। और ये सवाल कहाँ से आते हैं जी? ये आप लोगों के सवाल आते हैं जी नज़्मों में से, नसरी जो कहानियाँ हैं वहाँ से, और जो गज़ल हैं वहाँ से आते हैं, और आप लोगों की ग्रामर में से ये सवाल भी आते हैं। जैसे तशबीह कैसे किसे कहते हैं, इस्तारा किसे कहते हैं, मुजाज़ मुरसल वगैरह वगैरह, रदीफ़, काफ़िया, ये सारा कुछ। उसके बाद आप लोगों का सवाल नंबर 5 है, जो खुलासा लिखना होता है। यहाँ पर भी चॉइस होती है, 2 खुलासे दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक लिखना होता है। आप लोगों को एक तो जो आप लोगों को बिल्कुल सही आता है वो आप लिखेंगे खुलासा, और इसके 5 नंबर होते हैं। फिर आप लोगों का जो मज़मून है वो लिखना होता है आप लोगों ने, वो 15 नंबर का होता है और 2 होते हैं। इसमें से आप लोगों ने एक लिखना होता है और उसके भी अहम निकात वगैरह लिख कर, और इसको सबसे आखिर में लिखेंगे आप लोग। हमारा आखिरी सवाल होता है जो कि पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से आप लोगों ने सवाल दिए होते हैं और जवाब उसमें से आपने ढूंढ कर लिखने होते हैं। कुल नंबर आप लोगों के 75 हैं। आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लिखनी है, बनानी है। इसके अलावा नीट और साफ़ सुथरा, ओवर राइट नहीं करना, बार बार उसको गलत नहीं करना, रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, हर चीज़ को मेंशन करना है आप लोगों ने, तब जाकर आप लोग इसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये आप लोगों का सारा तरीका और सिलेबस था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।